everyone, welcome back to this channel Graduate Yourself. This is Athir Rizvi and I welcome you on this channel. So, the topic which we are going to study today is the classical theory of employment. So, see, the classical theory is divided into four parts. The first one is sales law, second one is wage price flexibility, third one is equality between saving and investment, and the last one is the quantity theory of money. So, let's study these topics one by one. Let's begin with the first theory of today's lecture, which is wage price flexibility. Actually, this is the second theory. The first one was sales laws of market, but we have already done in our previous video. And if you haven't watched, then I will attach the link in the description box. You can go and watch from there. And I recommend you to watch that video first, because if you watch that, then you will understand 80% of the classical model. And this theory, wage price flexibility, is based on it also. So do watch it. So moving on to wage price flexibility. Now, these all are the theories given by the classical economists. Classical economists like Adam Smith, Pigou, Marshall, J.S. Mill and all. David Ricardo. These are the classical economists. So they always believe in the situation of full employment. ये उनकी थ्रस्ट था, उनके मेन टैगलाइन थी कि they always believe on the full employment. Full employment means that situation where all the resources are fully utilized, all the laborers are engaged in the production, they are receiving the payment. So this is the point of full employment. So अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में रहेगी, और कभी इन केस क्या होता है कि डिमांड फॉल हो जाती है इन्वेस्टमेंट की फॉल होने की वजह से. तो अब इकॉनमी जब डिमांड फॉल हो गई इन्वेस्टमेंट के फॉल होने की वजह से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे सिचुएशन पे आ जाएगी. अब प्रोड्यूसर्स उसे वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे कैसे ले जाएंगे? सो वो क्या करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल द प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, मीन्स दे कैन बी ईजिली चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. सो जैसे ही डिमांड फॉल होगी तो वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, दे विल fall down the prices which shift the demand up, because we consumers prefer the products or commodities more at lower prices. So अब ये होगा कैसे? सी अब डिमांड फॉल हुई तो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल होगा, जिससे अब ज़्यादा प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर्स की भी नीड नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो लेबर्स को निकालना स्टार्ट करेगा अपनी फैक्ट्री से. अब वो निकालना स्टार्ट करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज़ होगा. अब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ चुकी है, अब उसे वापस से हमें कैसे ले जाना है फुल एम्प्लॉयमेंट पे? तो प्रोड्यूसर विल डू, दे विल स्टार्ट कटिंग द वेजेस. मीन्स जब यहाँ पे वो वेजेस कट करेगा, उससे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों इंक्रीज होगा. कैसे होगा? सी, इफ प्रोड्यूसर स्टार्ट डूइंग कटिंग वेजेस, then what will happen, the cost of production will going to fall obviously, क्योंकि अब उसे जो जितना भी इनपुट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जितनी भी कॉस्ट प्रोडक्शन करने में आ रही है, अब ऑब्वियसली उसने वेजेस कट कर दिए हैं तो उसे कम पेमेंट करना पड़ेगा इन सबका ऑब्वियसली, तो प्राइजेस भी फॉल होंगे, एंड प्राइजेस फॉल then this will lead to increase in the value of money and rise in the value of money, because prices are fall. Prices and value have always a negative relationship. So if value of money increase, then it will increase the purchasing power of consumers, and if purchasing power is increased, then it will increase the demand, and ultimately economy will back to the full employment point. So according to the changes made in prices, the full employment situation is maintained in an economy ultimately at the end of the day. So this is a wage price flexibility theory of the classical. I hope you are clear with it. So our next theory is saving investment equality. See, what is saving? The income which we don't spend on consumption obviously is called saving, and that saving is in leakage, because we are leaking it from an income. That's why it's called leakage. And that leakage is further reinvested, and where we reinvested, we save in a banks, and that banks reinvested in to different firms to purchase capital goods. So that leakage will again become
inject means investment. The another name of saving is leakage, and another name of investment is inject. मीन्स जो पार्ट हम लोग इनकम का स्पेंड नहीं करते टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं. और बट हम लोग सेविंग ऑब्वियसली कहाँ करते हैं, हम लोग उसको बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं. बट और बैंक क्या करते हैं, बैंक उसको फर्दर बिजनेस फर्म्स को दे देता है वो अमाउंट को जो हम लोग ने डिपॉजिट किया है. बिकॉज क्योंकि उससे क्या होता है, वो कैपिटल गुड्स परचेज कर लेते हैं या फिर वो शेयर मार्केट में लगा देता है. तो एंड सेविंग एंड क्लासिकल के अकॉर्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल रहते हैं. और उस पर इक्वालिटी लाता कौन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जिसमें क्लासिकल ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स क्लासिकल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रियल वेरिएबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. मीन्स क्लासिकल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सब कुछ करता था. बट this is highly criticized by Keynes, which we'll going to study in our next lectures. So right now the equality between saving and investment is bring by rate of interest. Just as price bring the equality between demand and supply, similarly the rate of interest brings the equality between saving and investment. How? See this curve, and the investment is always negatively related with rate of interest and saving is all positively related with rate of interest. because हम लोग हमेशा सेव तब करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है. क्यों, ऑब्वियसली जब कंज्यूमर जब नॉर्मल हम लोग तभी मोटिवेटेड होंगे ना सेव करने के लिए, जब हम लोग को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हम लोग को ज़्यादा देगा. तो उस पॉइंट पे सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होंगे. एंड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिलेटेड है क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिजनेस फर्म्स तब लेती हैं लोन क्योंकि उन्हें सस्ता लोन चाहिए होता है ना, क्योंकि उन्हें फिर वापस से पे करना पड़ता है. इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा नेगेटिव रिलेटेड होता है. कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा सेविंग. सो दिस आर द कर्व. The downward sloping line is investment, as I told you why it is downward, and upward sloping line is saving, which is indicated by S. And the intersection point is there where rate of interest is determined, OR. Here saving is equal to investment, and Q is quantity of money. So the last theory of classical theory of employment is QTM, which is quantity theory of money. So इसमें क्या होता है कि classical, see first of all the formula of quantity theory of money which you have to learn it is QM. QM means quantity of money which is equal to MV equals PT. Means what is MV here? MV is money supply, means जो भी money चल रहा है economy में, and V is velocity of money, means जो भी money जो circulation में है money. P is price level and T is output, total output. So according to the classical, V and T means velocity of money and T total output is constant, means these V and T are not going to change. The only effects of quantity of money if money supply changes is on द प्राइजेस, बिकॉज बी एंड टी चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है मनी की, ना इतना आउटपुट चेंज होता है. सो जब भी क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई चेंज होगी वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा प्राइजेस पे. प्राइजेस विल गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज. मीन्स अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, इफ मनी सप्लाई डिक्रीज होती है देन प्राइजेस भी डिक्रीज होंगे. सो changes in money supply will not going to affect output and employment and only affect on prices. So quantity of money का सीधा effect पड़ेगा किस पे, prices पे. V and T will remain constant. You can see on this curve also, on x-axis the prices have been taken, पड़ेगा किस पे, prices पे. V and T will remain constant. You can see on this curve also, on x-axis the prices have been taken, on y-axis output have been taken. The horizontal line is output which is not going to change obviously, and
initially the money supply is this MV. I'm pointing with my finger. I hope you are seeing with it. And the price is determined at this point P, OP. If somehow money supply RBI increases the money supply to M from this point to this, means M to M1, it will, as you can see, the prices are also increased from P to P1. But quantity is same. This earlier at this point and to new money supply, same quantity of money. So means output. So according to the classical, the output or velocity will not going to change, only the effect of money supply is on the going to have on prices. So this is the theory of quantity theory of money. So let's just quickly see the criticism of the classical theory. And these criticisms are criticized by Keynes, and these criticisms are realistic in nature, means these are true nature. And the first criticism is the situation of full employment is unrealistic, means Keynes ने the full employment की situation को unrealistic बता दिया. Means obviously think guys कि एक डेवलपिंग कंट्री में या फिर अनडेवलप्ड यूडीसी या एलडीसीज में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे हो सकती है, क्योंकि डिड यू रियली थिंक कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में या इंडिया में सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, सब रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं. तो एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर है नहीं, तो अनरियलिस्टिक हो गई ये सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज रेफ्यूज सेल्स लॉ, कि इसने सेल्स लॉ को भी रेफ्यूज़ कर दिया. सेल्स लॉ क्या कहते थे? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मीन जितना जहाँ जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसने इसको उल्टा बोल दिया, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिमांड नहीं क्रिएट, लोग उसे क्या हम लोग सारी कमोडिटीज़ को परचेज करते नहीं करते ऑब्वियसली. तो इससे क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाता है. तो ये भी फेल हो गया. नेक्स्ट वन इज सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल, मीन्स क्लासिकल के अकॉर्डिंग एक इनविजिबल हैंड आएगा एंड इकॉनमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ वापस आ जाएगी. बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर डेवलपिंग कंट्री एंड यूडीसीज, वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत नेसेसरी है. वहाँ पे इनविजिबल हैंड से काम नहीं चल सकता. मीन्स मार्केट मैकेनिज्म लाइक डिमांड एंड सप्लाई से गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत नेसेसरी है एक यूडीसीज में. नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम. एंड क्लासिकल ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? रियल फैक्टर्स लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट को. देख सेट की सेविंग्स है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी डिटरमाइन होंगी. नहीं, सेविंग्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन आवर इनकम. हमारी जितनी इनकम होगी हम उस हिसाब से सेव करेंगे ना. अगर हमारी इनकम ही इतनी नहीं है कि हम सेव कर सकें तो हम कहाँ से सेव करेंगे? तो सेविंग तो हमारी डिपेंड करती है सेविंग हमारी डिपेंड करती है इनकम पे, एंड इन्वेस्टमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. बट दो चीज़ों पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमएसी पे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. सो मूविंग ऑन, इम्पोर्टेंस टू स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी. जो क्लासिकल थे वो ऑलवेज ये मानते थे कि जो पीपल अपने पास पैसे रखते हैं, मनी रखते हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए रखते हैं, मीन्स डे टू डे स्पेंड करने के लिए. बट किसने बोला? नहीं, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव पर्पज़ के लिए भी रखते हैं. प्रिकॉशनरी मीन्स इमरजेंसी पर्पज़ के लिए. एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ मनी फॉल, मीन्स कि इसने ये भी यहाँ भी इसको भी फॉल कर दी, क्योंकि क्लासिकल तो वेलोसिटी कांस्टेंट मानते थे, लेकिन केस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी फॉल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर मनी डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो वेलोसिटी वेरी करने लगेगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी. तो जिसकी वजह से एम वी इज इक्वल टू पी टी भी वेरी करेगा, तो वहाँ चेंज हो जाएगा. इसलिए ये वाला assumption भी फॉलो हो गया और ये सब क्रिटिसिज्म बन गए. So with this we have come to our end of our session. I hope you enjoyed and understood this video, and if you guys having any doubt you can ask me in the comment section. And if you find my video useful, please like, share and subscribe to it. Thank you for watching this, and let's see you in our next lecture. Thank you.